Ahan is coming up to you and saying sorry. I said, why? अनीत को भी और आहान से भी बोला कि let me meet your parents. I want to meet them. First day of shoot of Ahan was like so nervous, and his first shot was with me. फिल्म में एक shot है जहाँ पे these people, they are so grounded because of their parenting that I don't think कि Aneet and Ahan tomorrow will be Nakchadhe stars. Mohit was so clear to the last dot of it कि whether it is our reactions. Remember him telling me कि हाँ ठीक है resemblance है लेकिन actor भी मेरे जैसे ही बनना. हाँ आप as a रोसेश आपने शायद अनीत को इंस्पायर किया पोएम लिखने के लिए. गोविंदा is there. Govinda is for sure there. Because Govinda is very spontaneous. Very spontaneous. जो भी मैंने फिल्में उनकी जितनी भी देखी हैं, पहला ये था कि राजेश ने सबैटिकल लिया हुआ है एक्टिंग से. दूसरी सोशल मीडिया जगह जिन्होंने बोला कि इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और खेती कर रहे हैं. Correct. तीसरी सोशल मीडिया इन्होंने बोली कि इस एक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि खेती कर रहे हैं. एक मैंने पढ़ा था बैंकक्रप्ट भी हो गए. बैंकक्रप्ट वाली बात थी, सच थी. There was also a time where you sold vegetables. So I had to sell those vegetables and मैं अपने स्कूल बच्चों के स्कूल के बाहर इसलिए बैठा लगाने के लिए. The stars are born, Yeah. and full gratitude happened within me saying that first time in 25-26 years I'm part of a blockbuster. तो ये वर्ड भी जो है इस जीवन में आपके साथ चिपक गया कि आप एक ब्लॉकबस्टर मूवी के पार्ट हैं. डेब्यूटेंट जो आज के युग है तो दैट आल्सो शोज दैट वी आर वेरी इवॉल्विंग इन अ राइट वे एज एन एक्टर. तो फीलिंग तो यही था कि after that when I met Ahan, I met Mohit sir, I met Aneet and all, so I could not speak much, so I just held them. And in fact मैंने अनीत को भी और आहान से भी बोला कि let me meet your parents, I want to meet them. And I just went and thanked them कि कितने अच्छे संस्कार आपने अपने बच्चों में डाले हैं. And that is what is reflecting on the screen. So corrupted नहीं है. जी. They are, but having said that, I mean, long way to go for both of them. Yes, absolutely. The first movie it is, and I think पहली मूवी में उन्होंने अपने heart, soul सब लगा दिया. Correct. And working with such experienced actors around was also nothing. Sort of bliss only I think for them as well. उनसे भी बात होगी. But sir, आपका experience इस मूवी में overall मोहित के साथ, how was that? So when first day, अच्छा पहले मैं तुम्हें बता दे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है. जी. How did I got casted in this film? So me and my wife, we were having lunch in one of the restaurant here in Goregaon East only. Okay. And कुछ 20-25 लोग enter हुए फ्रेम में. हाँ. और जाकर के कॉर्नर पे टेबल रिजर्व था लंबा सा. So they sat down and I just told my wife कि I think कि ये एड वाले लोग हैं. तो बस एक सिर्फ इतना ही मैंने बोला था कि I think ये एड वाले लोग हैं. And then we left after lunch. I reached home and I got call from Yash Raj saying that we want to audition you for this particular character. So कर सकते हैं? I said yeah, I'll come down and send me the script. I'll remember the lines and all, prepare myself and I'll come. तो मैं गया ऑडिशन वगैरह दे के आया and then after a week or so had an appointment with I had to meet Mohit Suri कि एक बार डायरेक्टर से आप मिल लेते हैं when things got finalized. So Mohit told me कि सर आपकी कास्टिंग पता कैसे हुई? मैंने कहा कैसे? So he said मतलब being such a fantastic director, he still calls me sir, I don't know why. तो I call him, so I call Mohit sir and he calls me Rajesh sir जो भी. तो फिर he said कि सर आप और आपकी वाइफ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और हम लोग वहाँ पे आए थे. मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला था अपनी वाइफ को कि ऐड वाले आए हैं. एंड यू सेड कि
तो बोला कि उसी समय फ़ोन आया था कि देयर इज़ दिस एक्टर राजेश कुमार, वी वांट टू ऑडिशन हिम फॉर दिस रोल, एंड मोहित सेड दैट ही इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी. So they said कि what do you think about? He said he's a complete family guy, so yeah, he's fine for the role. Wow. So you were actually at the right place at the right time. Right time. Yeah. And that's how it happened. And then definitely then met Aneet, then met Ahan, and first day of shoot of Ahan was like so nervous, and his first shot was with me. हाँ. फिल्म में एक शॉट है जहाँ पे आपने वो इंस्टा पे वीडियो भी डाला है? हाँ, मतलब वो First प्रिपरेशन का डाला correct, था, बट correct. वो पहला शॉट आहान का था हाँ. विथ मी वाज. फिल्म देखी हुई है जिन लोगों ने, उनको पता होगा जी. कि he comes and gives me the bag when I Yes. open the door, Yes. and we just look at each Yes, other. So yeah, it was a yeah. very silent moment Yes. between him and Yeah. me. So that was the first shot. But he did so well in the second or third take what Mohit wanted, you know, second and third take, and then there was this. So he was pretty nervous, and then फिर तालियां वालियां बजी, and then he was relaxed, and you know, so, and that's what I told him. I said कि I don't remember if the first shot of Ananya happened with me. No, Ananya का हो चुका था shoot, but at least Student of the Year 2, Year I two. was part Yes, of Ahan. Both the Ananya. Pandey's हाँ, brother, दो- sister, and- siblings. और फिर 1-1.5 महीने पहले मैं एक फिल्म शूट कर रहा था स्कॉटलैंड में, हाँ. चंकी सर के साथ. तो मैंने कहा मैंने पांडे परिवार कंप्लीट कर दिया. So I worked with all three of them, and they all are like amazing people. Yeah. Super. बट सर हाउ वाज योर्स? एक बॉन्ड देखा है हमने मूवीज में, जो मैंने आपकी बिंदियन फैमिली में भी देखी थी. एक यंगस्टर्स के साथ बॉन्ड, यहाँ पे आपके एक यंगस्टर्स के ऊपर जो एक जनरेशन होता है जो मिड लेवल पे आ गए होते हैं, मिलेनियल्स बेसिकली, उनके साथ एक जो डैड और डॉटर का बॉन्ड होता है वो हमने देखा. कहीं कहीं इस फिल्म में एक, मैं पता नहीं स्पॉयलर्स दे रही हूँ या नहीं, देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे यू वर अंडरस्टैंडिंग योर डॉटर मच बेटर देन द मदर, है ना? जहाँ पे मॉम गुस्सा भी हो रही थी तो आप मॉम को चिल्ला रहे थे. तो ये स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती मैं, बट आई फेल्ट दैट कि डैड्स आर वेरी क्लोज टू देयर डॉटर्स. You know, I think because why? Because एक तो मेरी personal life में that dearth is there. I have 2 boys. I Yeah. always wanted to have a daughter. And couple of films, in fact 3-4 films I have done, Yeah. जहाँ पे I played father to a daughter. So I don't know, manifest कुछ और तरीके से ही हो रहा है. But I think I understand this generation very well. Yeah. I understand their emotions very जी. well. Also because my son is also a teen. So you know, एक issue जो हम लोग के साथ होता है ना as a parent, वो हम अपने बच्चों को ना सुनते नहीं हैं. So when we start listening, we know कि ये exactly कहाँ से आ रहा है. जी. Because you also have lived that particular phase of your life. Yes. जहाँ पे आप चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप बगावती रहते हैं. जी. तो जब आदमी बगावत में रहता है ना, तो उसको शांत करके सुनना बहुत ज़रूरी होता है. And I think that's what I try whenever I get roles like this, where like for example you must have seen a show ये मेरी फैमिली. ये है मेरी ठीक फैमिली. है ना, उसमें भी बेटी के साथ वाला जो पोर्शन है, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी जोन रहता है जहाँ पे that understanding has to happen from within. So I think it is more because as a human you have worked on yourself, then it becomes very easy to work as an actor. क्योंकि जब मैं अनीत से मिला था, अच्छा फिल्म चूंकि बत्रा सरनेम है, पंजाबी है, बत्रा, यस. सो मोहित ने जो पहला इंट्रोडक्शन अनीत के साथ करवाया था, यही बोल करके कि सर पंजाबी आपका सॉल्व हो जाएगा इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टिक टू पंजाबी, और इफ यू जस्ट वांट टू स्पीक नॉर्मल हिंदी, तो पंजाबी अगर सीखना है तो अनीत आपको सिखा देगी. एंड देन टिल द टाइम वी वर शूटिंग टुगेदर, शी यूज्ड टू स्पीक टू मी इन पंजाबी ओनली, और प्रॉपर हार्डकोर पंजाबी. देन एक शॉट है जहाँ पे ऑल द बेस्ट पुत्तू बोलता हूँ मैं. जब वो जा रही है, करेक्ट, ऑल द बेस्ट पुत्तू बोलता हूँ. सो शी टोल्ड मी कि सर बेटा नहीं बोल करके पुत्तू बोलेंगे. मैंने कहा क्यों? नो, माय फादर कॉल्स मी पुत्तू. So through this movie I want people to I want him to feel happy when कि मतलब पुत्तू बुला रहा हूँ. So that all the best पुत्तू is there. तो वो
तो वो जो एक केमिस्ट्री उसकी वजह से बनी ना कि आई वेंट टू अनीत एज अ स्टूडेंट. I did not go to her as a senior actor. I did not go to her as a father who is, as an actor who is going to play her father. जी. So, जब वो एक एलिमेंट आ जाता है ना कि तू मुझे सिखाओ, जी. जब आप अपने बच्चे से ये बोलना शुरू करते हैं ना तो बॉन्डिंग अपने आप हो जाती है, एंड दैट इज वेयर यू ब्रेक द आइस, एंड दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. I think the last sentence was much needed, sir. Very much needed to all the parents out there. Yeah, Sometimes yeah. because they do not know such things. But मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी सर, क्योंकि आपने डेब्यूटेंट्स के साथ काम किया और इससे पहले 4 फिल्में ऐसी हैं जिसमें आपने डेब्यूटेंट्स के साथ काम किया. तो एक फैक्टर ये भी रहता है कि इनके साथ काम करना, इनको स्टार्ट सिखाना पड़ेगा. कभी कभार होता है कि आप या वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं. हाँ, मतलब ये इस ओपिनियन से बाहर आ जाओ. ये जो जनरेशन आ रही है एक्टर्स की ना, जी. ये बहुत ग्रूम्ड है. दे आर, जिसको बोलते हैं ना पके हुए मंझे हुए कलाकार. ये वो जनरेशन है, बारिंग फ्यू जिनकी तैयारी थोड़ी कम होगी. जी. लेकिन मैंने जितनों के साथ भी काम किया है, ये लोग तैयार हैं. दे आर रेडी फॉर द मार्केट, दे आर रेडी फॉर द बॉलीवुड, एंड आई एम टेलिंग यू कि they are the faces who are going to be there for another 25-30 years down the line, you know. Relevant रहेंगे ये लोग, because इनमें adaptability है बहुत तेज. जी. और इन्होंने सक्सेस इजीली नहीं देखा है. और अगर आज भी तुम अनीत को देखो या जो भी उसके क्लिपिंग्स आ रहे हैं जहाँ कहीं भी है, उसके चेहरे पे वो अनबिलीवेबल वाली चीज दिख रही है कि ये क्या सच में हो रहा है क्या ऐसा. करेक्ट, एब्सोल्युटली कनेक्ट तभी हम कर पाए थे. तो आप अगर रियलाइज लेट करते हैं ना लाइफ जी. में, तो आपके सर पे सक्सेस कम चढ़ता है. एंड दीज पीपल, दे आर सो ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंटिंग दैट आई डोंट थिंक कि अनीत एंड आहान टुमारो विल बी नकचढ़े स्टार्स. You know, both these kids will be like always sought after, you know, sought after actors, जिस boy next door वाली जो फीलिंग आती है. जी. लेकिन साथ में स्क्रीन प्रेजेंस और जो हीरोइज्म है ना आहान के अंदर, वो मतलब आपको दैट किल्स यू एंजॉय दैट पर्टिकुलर बीट ऑफ इट. राइट. तो ये मुझे इन लोग के साथ, अनीत के साथ और इनके साथ फील हुआ. तो और जितने भी 4-5 फिल्मों में काम किया, बिनी एंड फैमिली में अंजनी धवन के साथ काम किया, मतलब एकदम मंझे हुए थे. तो इन पे आपको ना करना ही नहीं पड़ता है कुछ. इनफैक्ट यू हैव टू बी अलर्ट. अच्छा, और इस फिल्म में मोहित वाज सो क्लियर टू द लास्ट डॉट ऑफ इट कि whether it is our reactions, whether it is, you know, their reaction, their action, till the time he wasn't getting it the way he had visualized, no, he wasn't leaving it. So, और मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ कि आप 3-4 टेक्स हो गए तो you know Ahan is coming up to you and saying sorry. I said, why? This film is yours. I'm here for supporting. Now, and I'm here to support you. So we are supporting each other, you know, to make the scene and make what Mohit is asking. तो वो give up attitude नहीं था. वो और ये आने वाले समय में आई थिंक इस फिल्म के बाद जो भी डायरेक्टर इन दोनों के साथ काम करेगा ना, they will have this privilege of telling them what to do and them responding to it, not reacting to it. But which one is your favorite scenes of the film? हाँ. जिसमें आई थिंक मेरा फेवरेट वही था जब वो कॉन्सर्ट में आता है. जो वो मोमेंट था ना, आई एक्चुअली वो इंटरवल के जो भी 20 मिनट 25 मिनट के बाद वो आया था शायद ना वो सीन. जी. When he walks in, मैं उसके वॉक पे फिदा हो गया था. मैं उस पर्टिकुलर शॉट पे फिदा हो गया था. मुझे कुछ शॉट्स में विक सर से मिला जो हमारे डीओपी हैं, तो आई आस्क्ड हिम अबाउट वन पर्टिकुलर शॉट, इफ दैट मस्ट बी तुम्हारे दिमाग में भी छपा होगा, कि वो फ्रेम में ना तुमने 70 mm पे देखा होगा, पीछे पूरा पानी उछला है, वेव है और ये दोनों आगे खड़े हैं और पीछे पूरा वेव है.
या इन वे वी Song रिलेटेड के टू बीच में या कहीं पे या था। या जिसमें हमने उसको ना रिलेट किया आशिकी 2 के साथ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, so वो there किया was this whole full 70 mm was a wave of water. हाँ। तो इस तरह के ना वो सीन मतलब पर्टिकुलर वो मोमेंट अच्छा लगा था। सीन जब वो नेपो किड वाली जो पिटाई होती है, क्रिश कपूर नाम याद रखना वाला जो है, I love that. या बट माइन वाज दैट मनाली वाला। हाँ, एक और सीन अच्छा हाँ था। हाँ हाँ मनाली वाला तो सीन अच्छा ही था। नहीं, जो वो देखता रहता है अरे ना। वो बताना नहीं है किसी को, अभी बहुत सारे लोग हैं कट जिन्होंने कर नहीं दूंगी देखा मैं। होगा। नहीं, एक और सीन था जो बहुत अच्छा लगा था, जो इसका अनीत का मोनोलॉग है हाँ इन द स्टूडियो। नहीं नहीं सब मूवीज मैं वही बोला, एक एक बात करके ना तो पूरी फिल्म हम बता देंगे। वी कांट बट लेकिन सर आपका चेकलिस्ट पूरा हो गया। इट वाज योर फर्स्ट वायरस फिल्म ना? ओह या माय फर्स्ट वायर फिल्म, या और दैट टू ब्लॉकबस्टर। पता नहीं, मतलब ये एक सपना जो था ना, ये कैसे पूरा हुआ है ऊपर वाला। उससे सही में ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग अराउंड दैट, यू नो, समथिंग लाइक दिस हैपेंड। आई थिंक मोहित सर ने सबको ऐसे ही सेलेक्ट किया है, सबको रेस्टोरेंट या बार पे। मैं स्टोरी पढ़ रही थी, अहान भी ऐसे ही सेलेक्ट हुए थे बार में, आप भी रेस्टोरेंट में। थैंक यू फॉर गिविंग दिस स्टोरी नाउ। आई वांट पीपल टू पिक दिस कि मोहित आई सर थिंक ने। अनीत का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है एज फार एज आई रिमेम्बर। हालांकि वो अनीत के मुंह से ही सुनना बेटर रहेगा। बेटर नहीं सर। बट सर राइट नाउ हाउ इज द फीलिंग, क्योंकि आपने सारे डेब्यूटेंट्स के साथ काम कर लिया है मैं 3 मोस्टली। दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। क्या बात कर एंजॉयिंग दिस? Enjoying this success यार, I just very मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। That whole feeling through the social media ना, Yeah. it's giving you another high. लिटरली ये लिख रहे हैं आपके बारे में कि कि ऋषि कपूर लग रहे हैं। ऋषि कपूर तो लग ही रहे हो आप सर। मैं तो आते साथ बोली यार, जो जिसने भी ये बात बोला है सही बोला है। एक्चुअली अभी भी ऋषि कपूर ही लग रहे हो। ऋषि जी, I remember him telling me कि हाँ ठीक है, रिजेम्बलेंस है, लेकिन एक्टर भी मेरे जैसे ही बनना। नहीं सर, तो फिर जैसे मतलब कोई एक्टर्स भी बोले आपको या फिर? नहीं, एवरीवन है ना? ऑल द डायरेक्टर्स, बिकॉज है रिजेम्बलेंस यार, कांट हेल्प इट, आपको झलक दिख ही जाती है चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और ये मेरा आज से नहीं है, ये मेरा नाम जोकर में जो ऋषि जी का था, जो बचपन था, तो मेरा बचपन वो मेरा नाम जोकर वाले ऋषि जी से ही मिलता था। So all my I'm having that thing. I always say that I live as Kapoor and I'm born as Kumar. सर ये तो कमेंट्स थे ही, बट एक कमेंट्स और भी अच्छा था जो मैं लेके आना चाहूँगी। हाउ यू स्टिल आर कनेक्टेड टू बिहार? वहाँ बिहार के भी लोग हैं जो आपको बहुत सारे कमेंट्स अच्छा, आई एम नॉट अवेयर दैट लॉट मेनी पीपल नो दैट आई एम फ्रॉम बिहार। ये मेरा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये बिहार में भी मेरे साथ हुआ 2 महीने पहले। एक घटना घटी कि गया से मैं पटना आ रहा था जी और नए वाले हाईवे पे चल रहा था, तो वहाँ पे ये जो लिकर बैन है बिहार में, तो उसकी चेकिंग चल रही थी। तो मेरे आगे 3-4 गाड़ियाँ थी और मेरी इनोवा लास्ट में थी। तो जब गाड़ी धीरे हुई तो मैंने ऐसे ही, मतलब बहुत देर से एसी में बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही कांच नीचे किया एंड ये 3-4 पुलिस वाले थे, इन्होंने मुझे देखा और फिर उधर डायरेक्ट किया, इस गाड़ी को जाने दो, इसमें फॉरेनर बैठा है। तो ये घटना मेरे साथ जरूर घटी है बिहार में। तो मुझे लगा कि नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आई हैव डन अ फिल्म वेयर आई प्लेड अ बिहारी कैरेक्टर आफ्टर 26 इयर्स। टेलीविजन में किया था मैंने, कॉमेडी में वो अपना बड़ी दूर से आए हैं में किया था, बट इट वाज टेलीविजन एंड लास्ट फेज इट वाज मोर ऑन यू नो ह्यूमर। बट अच्छा रोल प्लेइंग अ प्रॉपर बिहार का बंदा, तो वो एक फिल्म आने वाली है जल्दी। आई थिंक बाय दिवाली यू विल गेट टू सी अनदर राजेश। ट्रांसफॉर्मेशन भी है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अलग है, व्हाट आई हैव नॉट डन बिफोर ऑन स्क्रीन। सो लकीली दिस फेज हैज ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स। सो ब्लॉकबस्टर से शुरुआत हुई अच्छी। हालांकि तेरी बातों में उलझा जी वाज आल्सो अ हिट। करेक्ट Binyan Family was received so 2024 में well. you had 2
हिट्स yeah. टुगेदर आई थिंक, और कम समय में ही था वो। Correct, तेरी correct, बातों उलझा में उलझा जिया था, और दूसरा अपना बिनियन फैमिली में था सर। True. बिनियन फैमिली वाज आल्सो ग्रेट फिल्म, वेरी ग्रेट Binyan family, हाँ मतलब critically it was acclaimed. I think Yes. they are planning for re-release of that film. OTTs. Not OTT, I think proper फिर से theater करेंगे. थिएटर में, oh Because wow. it deserves that audience, it deserves Absolutely, that absolutely. education. Yes. बट सर मैं पूछना चाहूँगी, और 2-3 कमेंट्स थे, ये सारा भाई सारा के लिए भी कमेंट थे आपके लिए, कि सब इनको कि राजेश कुमार से जानता होगा, बट हम तो रोसेज से ही जानते हैं इनको, यू नो, ये चीज़ भूलेंगे हम, कभी भूल नहीं सकते, ना सर को भूलने देंगे। सो दे वे कमेंटिंग ऑन दैट कि बार उसकी सर मेमोरीज हैं कुछ? नहीं, मेमोरीज क्या है यार, वो तो हर दिन ही मेमोरी बना देता है वो कैरेक्टर। आज 21 साल के बाद भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कुछ तो अच्छा किया हम लोगों ने लाइफ में। एंड मेमोरी उसमें यही है कि आने वाले जनरेशंस, यू नो, एटलीस्ट 3 जनरेशन तो मेरे सामने है जो राजेश को रोसेश की तरह जानते हैं। जी। तो यही एक याद है बड़ी कि जब ये आया था तब ये फ्लॉप हुआ था, फिर इसका रिजल्ट कब आया। सो ये जो एक कहावत है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, वो रोसेश के किरदार से समझ में आया कि आपने उस समय 2024 में सिर्फ कर्म किया था, फल क्या मालूम था कि 2025 तक मिलेगा। So you do your work with honesty, that's what I feel sometimes. और उसकी यादें तो यार मतलब बहुत बातें हैं उसके ऊपर। It was a good 70 episodes पहला, and in fact 1-2 कमेंट मैंने पढ़ा अपने उस पे कि I don't think कि हाँ, आप एज अ रोसेश आपने शायद अनीत को इंस्पायर किया पोएम लिखने के लिए। So that was दिस इज an नाइस, angle, दिस yeah. कनेक्टेड, नहीं तभी तो पोएम लिखते रहती है इतना। कि आपकी बेटी अगर रोसेश की बेटी होती तो ये कविता ही लिखती। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ा लोग एकदम डिटेल में देख रहे हैं। करेक्ट। सो सिंस देन और अब कितना कुछ बदल गया आपके आसपास, इंडस्ट्री बदलते हुए देखा है आपने ब्रेक भी लिया इस बीच में। सर देयर इज समथिंग जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि आई मिस्ड आउट दिस थिंग्स, और आई टुक दिस, ऐसा कुछ आपके अपॉर्चुनिटीज या यार मुझे एक चीज़ लगता है अभी भी जो हमारी इंडस्ट्री में आना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो अभी भी हायरार्की है ना जी, वो मैंने लेटली काफ़ी फील किया है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ, चलिए एक्टर बड़ा होता है तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है, एक्टर छोटा होता है तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है, बट एक्टर बड़ा छोटा सिर्फ कामयाबी और पैसे की वजह से ही आंका जाता है, राइट? और लोग कितना पसंद करते हैं और कितनी हिट फिल्में दी हैं या कितनी फ्लॉप्स दी हैं, वो मुझे लगता है कि आई थिंक इस जनरेशन में ना वो इवॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, और उसका होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई जगह पे ये आज नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले जब काम कर रहा था तो वो ना फीलिंग आती थी वेयर you know, if you are respected as an actor, but kahin na kahin sitting on the same couch becomes difficult. You're getting me? Yeah, got it. So because at a time I also feel that जो पोजीशन आपने साइकोलॉजिकल एक पोजीशन होता है, एक पोजीशन पब्लिक ने आपका परसेप्शन बनाया हुआ होता है, एक आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन्होंने आपके बारे में जो हुआ क्रिएट किया हुआ होता है, वो ना आपको रियल वर्ल्ड से थोड़ा दूर कर देता है और रियल लोगों से दूर कर देता है। सो आई समटाइम्स फील देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू नो experienced person and a successful person. I sometimes feel that. So it's difficult to approach because the moment you are at a very, you know, success rate में ऊपर होते हैं, आप उतने ही unapproachable हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? Yeah. You still, but this has happened with you? Does not happen with, You but just this is you experience feel that around you.
So because it is just a moment of वही one Friday changes you ना. समझ में. So वो मुझे लगता है, और उसके कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जैसे आई रिमेम्बर वन इंसिडेंस आई टेल यू ऑफ डिम्पल कपाड़िया जी, विच वाज अमेजिंगली मेरे लिए वो इतना खूबसूरत लम्हा था. सो वी वर शूटिंग फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जी, एंड लाइट शिफ्टिंग चल रही थी. वी वर शूटिंग इन जैसलमेर, और वहाँ पे हम लोग 4-5 लोग बैठे हुए थे और डिम्पल जी भी बैठी हुई थी. एंड नाउ बिकॉज इट्स डिम्पल कपाड़िया, सो वी वर टेलिंग अबाउट हर कि आपकी वो मूवी, आपका वो गाना, आप उस फिल्म में, आप उस जगह पे. एंड आफ्टर 3-4 minutes in the conversation she stops us and she says कि okay enough of me, क्या मैं अब आप लोग के बारे में जान सकती हूँ? So now the conversation starts. अदरवाइज हम क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो हम सिर्फ तारीफ करके रह जाते हैं जी, है ना. और फिर सामने वाला अगर थैंक यू, अरे वो तो वो सब आप कर लेते हो, बट एक्चुअल जो एक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन होता है ना, मुझे लगता है कि बहुत मिस करता है हमारे वर्किंग जोन में. क्योंकि 12 घंटे आप साथ में हो ना, आपको पता नहीं है किसी की एक कहानी, किसी का एक अनुभव, किसी का एक विचार, इट जस्ट माइट स्टिक विथ यू, एंड आपके अपने एनहांसमेंट में हो सकता है काम आए. एज अ ह्यूमन आप ज़्यादा ग्रो करेंगे. करेक्ट. मतलब अदरवाइज आप जितनी ऊंची बिल्डिंग पे चले जाते हैं, आप ज़मीन से उतना ही दूर होते चले जाते हैं, तो फिर कहानियाँ आपकी फीबल होती चली जाती हैं. सो ये मेरे को एक हमेशा से लगता है कि दैट change will happen one day, where people will sit together and talk together. ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक्टर चला आ रहा है और सेट पे 8 उसी के अपने लोग हैं, और सिर्फ सीन में आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और डायलॉग्स बोल रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं, और फिर वो आपसे कट जाता है. तो आप इस तरह की फिल्म में तुमने जो ऑब्जर्व किया जया कि बाप और बेटी का एक अनसेड रिलेशन था, जो आंखों में था, भले उतना स्क्रीन प्रेजेंस में मतलब हमने उसमें डायलॉग्स नहीं डाले या ये उसको बैक नहीं किया, बट वो जितना भी था वो अनसेड इसीलिए था क्योंकि हम कॉन्वर्सेशन में थे. You wanted off screen more. हाँ, जब कैमरा और लाइट लग रहा था तो yeah. मैं और तुम जब बैठे हैं तो बात कर रहे थे जी, उसके अमृतसर की कहानियां सुन रहे थे. हाँ. उसको आप अपनी कहानी सुना रहे थे. बिल्कुल. सो तब जाकर के एक बॉन्डिंग बनती है वो ना. स्क्रीन पे दिखा है फ्रंटलेसली जो दिख रहा है. कई जगह पे मैंने देखा है कि एक्टर जो है वो राइटर के साथ रिहर्सल कर लेता है और आपको आकर के लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है कि आपको ये बोलना है. तो आपके साथ रिहर्सल क्यों नहीं हो रही है? So many places they have different thing, and हर जगह का वर्क कल्चर अलग है. बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो कौन है जो तय करता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है. मुझे उससे मिलना है. सो बट पार्टीज के पार्ट रहते हो आप? मैंने सुना है पार्टीज में जाओ तो रोल्स मिलते हैं. मतलब पहले की बात है, अब तो नहीं होता है मेरे ख्याल से. ऐसा नहीं यार, आजकल तो सोशल मीडिया पे ही इतना ज़्यादा आप अपने आप को प्रेजेंट फील करवा देते हैं. पहले डेफिनेटली ये था कि बिकॉज देयर वाज नो अदर मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग और स्ट्रगल कि भाई अब सीधा एक फ़ोन करें और बात करें. वो अब है कि आप तो पार्टीज वगैरह मतलब सक्सेस पार्टी होती है, कुछ इस तरह का होता है, लॉन्च होता है तो आदमी जाता ही है यार. बिकॉज इफ यू आर पार्ट ऑफ इट एंड इफ यू आर इनवाइटेड, इट्स नॉट दैट यू आर गेटिंग इम्पोर्टेंस और यू आर नॉट गेटिंग इम्पोर्टेंस, बट योर प्रेजेंस इज फॉर यू. You get to learn new things, you get to meet new people. पर सर चीज़ें चेंज जब मैं बात कर रही थी तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे यू आर एजिंग और यू आर गेटिंग मोर रोल्स, जैसे आपने पहले भी बोला है कि टाइप कास्टेड वाला जो चीज़ था वो चीज़ें चेंज हुई है अब? काफ़ी चेंज, सब चेंज हो गया. हाँ, सब चेंज हो गया आपके प्रति. या that has changed. That is why these offers getting such roles, मतलब till October, November there are 3 films releasing, 1 web show releasing. So all of them are different characters. So people are
एक चीज तो हुआ है रोसेश की वजह से हाँ कि people have started seeing you now हाँ as an actor. Because I remember someone telling someone हाँ कुछ एक ad का एक ad था, so वो मेरे लिए पहले हुआ, फिर वो मेरे लिए कैंसिल हुआ, फिर वो मेरे लिए हुआ. So when I went on the set, I spoke to the director. I said ये क्यों था juggling? जी. कि पहले हुआ फिर नहीं. So they said कि these people were saying कि वो रोसेश वाला इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से हम जो बात कहना चाह रहे हैं थ्रू एड वो नहीं कन्वे हो पाएगा टू द ऑडियंस इन अ डिफरेंट वे. So the director said a beautiful line about me. He said कि as an actor, that man convinced you that he is Rosesh. So can't he convince you someone else, being someone else? वाह And that is the whole game. कि एक डायरेक्टर को ये समझ में आ रहा है कि यार एज एन एक्टर इस आदमी की पर्सनालिटी ने आपको कन्विंस कर दिया कि ये रोसेश है. तो यही तो एक्टिंग में खोजते हो ना तुम, कि तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं कौन हूँ. सही बात है भाई तो इसका मतलब कि ये कुछ और भी करेगा तो आपको कन्विंस तो कर देगा ना कि मैं ये और हूँ. जी सो आई थिंक दैट हैज नाउ Changed. चेंज्ड एंड मतलब likes of Nikhil Advani ji जी giving me a role of Liaquat Ali Khan, Pakistan's first prime minister, was a challenge. करेक्ट He मतलब अगर उन्होंने मान लो जो मेरा टेप गया था, ऑडिशन गया था, तो when he must have seen, तो एक तो थॉट तो आया ही होगा ना, अरे यार ये लोग किसका ऑडिशन लेके आ गए कॉमेडी का, you know. And when he saw the whole scene 3 मिनट 4 मिनट का, I think within a minute he said कि yeah, he's Liaquat. Because I convinced him that I can be Liaquat. So आप मुझे अगर मौका नहीं देंगे तो मैं कन्विंस कहाँ से करूँगा, you know. सही बात है So typecasting is done by whom? Not the audience. You become an audience and then you decide. For me as a director, when you are director, you cannot be audience. करेक्ट मतलब फॉर सम टाइम आपको मेरे अंदर वो देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर वो पोटेंशियल है और इसके माध्यम से मैं ऑडियंस को कन्विंस कर दूंगा कि सकता ये आदमी ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये इसमें ये बुराई है, इसमें ये अच्छाई है ना. तो वो जब फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर आपको तो ऐसे लकली ऐसे ही सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, लाइक मोहित सूरी, अमित राय, अनुराग कश्यप, निखिल अडवाणी, you know. So इस फेज में आई एम एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर. बट डू यू स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स मतलब No, आप I अगर think बात the करें casting agency because जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है हाँ. वो उस हिसाब से दे अप्रोच. I think your question should be, do you still audition for the roles? that would be my second question. But my first question would be कि अभी भी आप अप्रोच करते हो, क्योंकि जब आप एक बार जब Because लास्ट कई- मैसेज में जब बात हुई थी तो आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू, आई स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स Yeah, बिकॉज आई हैव बीन टाइपकास्टेड. देयर वाज नहीं टाइम नहीं अभी the roles are approaching me. The roles are approaching me, and the roles approach through casting agencies. So वो जैसी रिक्वायरमेंट रहती है स्क्रिप्ट की, फिर उस हिसाब से आता है. हाँ, जो क्वेश्चन सेकंड वाला है हाँ, कि do I still yeah. audition? There are many times जहाँ पे कई बार टेस्ट इस तरह का करना एक्टर के लिए भी हित में है, क्योंकि आप जब एज अ डायरेक्टर या एज अ क्रिएटिव जब बैठते हैं जी. तो आप एक परिवार का या आप एक अपने सारे चरित्रों का एक एल्बम बनाते हैं, राइट. जी तो उसमें उस समय अगर आपने टेस्ट किया होता है तो वो कई बार मेमोरी में ज़्यादा अच्छा छप जाता है, क्योंकि ऑडिशन मुझे नहीं लगता कि ये तय करने के लिए होता है कि इस आदमी को एक्टिंग आती है या नहीं आती है. करेक्ट 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 But is he fitting in my story line? Or, you know, I have to tell a story. Now, if this person is fitting that bill or not, I think that is where the whole game is. करेक्ट करेक्ट तुम्हारे माध्यम से मैं यही बात कास्टिंग वालों से भी करता हूँ कि आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेंड द मैसेज अक्रॉस दैट ये इजी होता है बताना कि आपका नहीं हुआ.
आपका क्यों नहीं हुआ वो भी अगर कभी कभी पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है. वाई? बिकॉज एक एक्टर के लिए ना ग्रो करने की गुंजाइश बची रहती है कि मेरा क्यों नहीं हुआ. सो एक बार तो ठीक है, चलो आप फिजिकल नहीं बैठे, या आपका जो को एक्टर उन्होंने जिसको पसंद किया उसके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ रहा जी है, जी फिजिकलिटी में नहीं बैठ रहा है, उम्र में नहीं बैठ रहा है, परफॉर्मेंस में तो खैर मैं डाउट ही करता हूँ कि जब आप 25 साल में प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे एक्टिंग आती है या नहीं आती. मुझे डांस नहीं आता है ना. तो वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. बट हियर आई वुड से कि आई थिंक आवर बॉलीवुड शुड बिकम more responsible towards each other. And once you do that, every second film can be Sayyara. wow Every second. Because this film was all about trust. This film was YRF believing in Mohit Sori believing in his new Covers. couple, Yeah. and the supporting cast, and the story and the dialogue. The dialogue writer is having trust on the actor that it will be delivered in a way Correct. that people will notice me as well. absolutely है ना. right. इतनी सारी चीजें मिलती हैं तब जा करके एक सैयारा बनता है. And in fact, it was just not about just about the couples. It was also about supporting actors. Absolutely, I think absolutely. I saw your stories, Shan's stories, Yeah, and Man's stories. The True, one who was true. your wife. The movie. सबके लिए अच्छी comments थी सर. हाँ हाँ. People noticed such बिकॉज characters. हम उस स्टोरी टेलिंग में ना हिस्सा बन गए थे. हम रुकावट नहीं थे. हाँ. हम अपने लिए काम करने नहीं गए थे वहाँ पे. Correct, हम correct. उनकी जो कहानी कही जा रही है उसको बढ़ाने. उसमें हम स्टैंड बिल्कुल खड़े थे उनके साथ. बिल्कुल बिल्कुल. कि आपके दिमाग में मतलब एक मेरा प्रेजेंस जो है वो उस क्षण में आपको उस कहानी में और इमोशन लेयर ऐड कर देता है. जी जी है ना. मैं इस एक्टर को खा गया और मैंने जो अपना परफॉर्म किया ऐसा वाला कुछ था नहीं वहाँ. करेक्ट करेक्ट वो So you went for a decent work, you went for a different style of storytelling, and in today's relevant to today's Gen Z, you were Yes. part to film, Yeah, but we never thought definitely it will be a blockbuster. But this is like for me, I think I should work more with everything. Sara Bhai, Sayyara, two Good blockbusters in my good life. one sir good one. It's all सा. So सा हो गया है. अब रेगा मा पदनी सा बाकी है. बट एक ब्रेक भी लिया था सर आपने. हाँ, है ना. हाँ, बट उसके बाद जब आप आए Yeah, आई थिंक इट वाज अ गुड कम It बैक. was a very है and ना? it was a good break then I would गुड say. ब्रेक. वो ब्रेक सही था क्योंकि यू ऑल्सो गॉट रूटेड Yeah. समवेयर व्हिच यू ऑलवेज लव टू डू दैट. Correct. तो अब जब वो ब्रेक के बाद जब वापस आए हाउ वाज दैट टर्निंग पॉइंट? तो स्ट्रगल रहा. हाँ. आप अपनी फिजिकलिटी से भी कंफ्यूज्ड थे. आप कि आपने एजिंग की है. आप अब रोसेश नहीं दिखना चाहते हो. तो इस वजह से जब हड्डी फिल्म की थी तब मैंने बाल भी मुड़वा लिया था. जी, फिर वहाँ से वजन भी बढ़ाना शुरू किया था. सो इफ यू सीन सैयारा ऑल्सो मतलब इससे ज़्यादा ही पेट है. एग्जैक्टली. पहला सीन में यू वर देन द लास्ट सीन यू वर लीन. डिफरेंस राइट. तो अभी जा करके मतलब 10 kg कम हुआ है. अभी प्रोसेस चल रहा है. सो मैनी पोर्शन जो वर्क अभी आएंगे बहुत में मतलब हेवी दिख रहा हूँ. एक दो है जहाँ पे सडनली दुबला पतला दिख रहा हूँ. तो है अभी मतलब चलेगा. तो वो अब इसलिए है क्योंकि वो वज़न बढ़ाना जो था वो कारण बहुत स्ट्रॉन्ग था जो मैंने फील किया नॉर्मल ऑडियंस में. क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था तो लोग ये पूछते थे आर यू द सेम गाय हु हैज प्लेड रोसेश, because I wasn't looking like Rosesh. Right. And that is where that whole perception of seeing Rajesh not as Rosesh happened. जब बाल मुड़वा लिया और वजन बढ़ा लिया था. And all these work happened because I was not looking like Rosesh. And I had put on weight because maturity भी आ जाती है ना जब आप थोड़ा वजन बढ़ा लेते हैं. जी. क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिकली बॉयिश
लुक है, अगर अभी भी मतलब 15-20 किलो कम कर दूं तो इमीडिएटली आपको अर्ली 40s वाला दिखेगा, नॉट मतलब अभी भी मुझे नहीं लगता कि 50 का दिख रहा हूँ मैं। खुद ही आपने रिवील कर दिया, हमने तो आपको बोला ही नहीं, अब तो 25 के दिख रहे थे। नहीं आजकल विकिपीडिया पे सारा एज है डाला हुआ है तो छुपा नहीं सकते बट हाँ मतलब तो वो मैच्योरिटी दिखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल किरदार अलग हो रहे हैं ना, आजकल आपकी अपनी पोजीशनिंग चेंज हो रही है, सो यू हैव टू लुक डिफरेंट, यू कैन नॉट लुक लाइक आहान दो मेरे बेटे का नाम भी आहान है, दैट्स द कोइंसिडेंस आपने अप्रूव कर दिया था ना दमाद, ऐसा दमाद आहान को। तो किसको? दामाद को। हाँ वो तो बेटा तो मान ही लिया, बेटा अपने ही घर में था, मैंने कहा ये भी बेटा ही है मेरा। बट दैट टर्निंग पॉइंट्स आई वाज टॉकिंग, जो टर्निंग पॉइंट था वो, उसको आप एज अ ग्रैटिट्यूड देखते हो? अच्छा था वो टर्निंग पॉइंट? एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि देखो सबसे बुरा उसी दिन होगा जिस दिन आप नहीं होंगे जिस दिन आप नहीं होंगे वही दिन, और वो भी आपके लिए बुरा नहीं होगा, जो लोग रह गए उनके लिए बुरा होगा कि ये नहीं है यार। बट आप अपने लिए आई थिंक कि all these moments of your life ना, it's all about learning. आप बहुत कुछ सीखते हो, आप अपने चरित्र के बारे में कितना कुछ सीखते हो कि यार ये जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो क्या है, आप एक्सप्लोर करते हो, आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देखते हो। सो इट इज़ नॉट ओनली प्रोफेशनल साइड ऑफ योर्स विच मेक्स यू, there are so many human factors which come and makes profession is one part of it. और हम तो उस प्रोफेशन में है जहाँ पे humanity has to be the first, because आप अपने किरदार के थ्रू आप लोगों को इमोट करवा रहे हैं जी, उनको रोने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, तो हमको तो सबसे ज्यादा ह्यूमन होना पड़ेगा। सही बात है। बॉलीवुड में थोड़ा मिसिंग है। No, everyone is good in their own way, not in that sense, but I think कि we should be more human towards each other, and उसके बाद किरदार अपने आप निकल के आते हैं यार, कितने सारे लोग मिल के आते हैं। सर कोई फिल्म ऐसा बताइए जो आपके दिल दिमाग सब में आज तक चलता है, जब भी आप किसी के साथ बैठते हो तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हो। अगर मैं फिल्मों के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं चाची 420 के बारे में बहुत डिस्कस करता हूँ, बिकॉज माई फेवरेट एक्टर इज कमल हसन साहब, एंड उनसे अच्छा कन्विंसिंग गिमिक आज तक मैंने किसी एक्टर का नहीं देखा है। गोविंदा इज फॉर श्योर देयर, बिकॉज गोविंदा इज वेरी स्पॉन्टेनियस, जो भी मैंने फिल्में उनकी जितनी भी देखी हैं वो समझ में आता है कि उस क्षण में ये बना है ना, और उस क्षण में बहुत कन्विक्शन के साथ बना है। करेक्ट। गोविंदा के साथ एक और चीज़ मुझे हमेशा एज एन एक्टर ये अच्छी लगती थी कि जो भी फिल्में उनकी, कि he never came across as a hero, he played characters. As a hero also he used to play different characters. Correct. Otherwise हीरो में कई बार ना मुझे लगता है कि ये एक फंसने जैसा हो जाता है कि आप कितने समय तक सेम पैटर्न पे आपको लोग पसंद करते रहेंगे, है ना। सही बात है। कितने समय तक आपकी फिजिकलिटी पे सीटी बजती रहेगी, आपकी एंट्री पे सीटी बजती रहेगी, कितने समय तक, किस उम्र तक। सो अगर आप बच्चन साहब को भी देखिए, बच्चन साहब ने भी सारे कैरेक्टर्स ही किए हैं एज अ हीरो। He never, whether it was Don, whether it was Angry Young Man, whether it was Short, he did characters as a hero. Correct. और वो मुझे अभी लगता है कि लेटेस्ट में आहान के अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, that he can play characters as a hero, and that will keep him on, and that is there for all the actors. Otherwise इतने सारी सोशल मीडिया के प्रेजेंस होने की वजह से इतनी ज़्यादा मिमिक्रीज होती है ना आपके इर्द गिर्द, कि आपसे ज़्यादा एक पॉइंट पे ऐसा भी लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा वो मिमिक्री आर्टिस्ट करने लगा है।
सही बात है। You know? और उसके कारण क्या हो जाता है कि आपको फिर अपने आप से डाउट होने लग जाता है सर। डाउट भी है और आपको अपने आप को तोड़ना पड़ता है। तो आप अलग अलग किरदार अगर करते हैं ना तो मिमिक्री वालों को भी मटेरियल नहीं मिलता है। जिस दिन वो मिल गया कि पैटर्न यही है, जैसे इरफान भाई का भी पैटर्न भले वो था बोलने का, लेकिन इट वाज ऑलवेज डिफरेंट। Different, यू सी हिम yes, इन पान yes. सिंह तोमर, इट्स सो डिफरेंट। या यू सी हिम हासिल इज सो डिफरेंट। तो Yeah. तो इस वजह से ये यू नो व्हेन आप जब चरित्र कोई प्ले कर रहे हो, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उसमें आप मेन लीड में और हीरो में है ना, देन इट वर्क्स फॉर यू, देन यू कैन बी ऑन टिल 80 बिकॉज एवरी टाइम पीपल विल बी सीइंग समथिंग न्यू। करेक्ट है। बट ऐसा कोई मूवी या शो या सीरियल या OTT सीरीज कुछ ऐसा जो आपके पास आया था और आपने उसको मना कर दिया बट देन यू रिग्रेटेड? No, I do not regret what I left, but two shows had definitely come. हाँ. One was तारक मेहता का उल्टा चश्मा and one was भाभी जी घर पे हैं। ये दो shows definitely बहुत अच्छे से ऑफर हुए थे हाँ. and I don't know in what situation I said no to it and it became hit, but sometimes you also see it कि वो तारक अभी भी चल ही रहा है, you know, I know. भाभी जी भी 10 साल से चल ही रहा है। I would not have been able to explore this side of it. तो Yeah. शायद उस समय का जो ये निर्णय है वो अब गिल्ट नहीं है, वो उस समय का निर्णय को ग्रेटिट्यूड है कि उसकी वजह से आज ये शायद कर पा रहा हूँ मैं। या अदरवाइज ये नहीं हो पाता बिकॉज आप टेलीविजन का एक कमिटमेंट है यार, 30 दिन आपको कमिट काम रहना करना होता है। यस अब यस। और मैं उतना कमिटेड आदमी हूँ कि मतलब एक बार हाँ बोला है तो फिर अब चलते रहिए मेरे साथ, फिर मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको। बट सर कितने प्राउडली आप बोल रहे हैं कि हाँ मैंने जो भी किया है, मेरा पहला शो सारा भाई के कारण, यू मेकिंग श्योर कि वो ऐड हो, इसके कारण आई गॉट फेमस, इसके कारण Yeah, पीपल yeah, स्टार्टेड everything गेटिंग is टू। interlinked, अदरवाइज ना? पीपल दिस डू नॉट टॉक अबाउट Oh, इट कि अच्छा। हाँ कि मैं यहाँ से फेमस हुआ हूँ, टेली से फेमस हुआ हूँ, यू नो टेलीविजन एक फैक्टर होता है। टेलीविजन से सबसे बेस्ट क्या हुआ ना जाए कि आप हर किसी के घर में घुस गए, है ना? और अब जब वो आपको OTT पे देखता है और फिल्मों में देखता है तो उसको अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। और उसको ये मालूम है कि जब वो मुझे देख रहा है तो वो 2-3 एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा हुआ है कि या तो ये आदमी हंसाएगा या ये आदमी कुछ तो अच्छा करेगा क्योंकि इसने टेलीविजन में बहुत अच्छा किया है। और वहाँ पे अगर आप विलेन प्ले कर देते हैं ना तो फिर आप एज एन एक्टर एक्सेप्ट हो जाते हैं। There was also a time where you sold vegetables. अरे यार वो क्या था sold सर वो word टाइम? अलग आ गया उसमें, लोग कहानी ट्विस्ट कर दी थी लोगों ने। नहीं आप क्लियर कर दीजिए सर अरे जो वो भी clear- कहानी थी। हाँ क्लियर यही था कि सब्जियां जो उगी थी और उस समय खेत एक तरफ बंद हो गया था और सो आई हैड टू सेल दोज वेजिटेबल्स एंड मैं अपने स्कूल बच्चों के स्कूल के बाहर इसलिए बैठा लगाने के लिए और द फैक्ट वाज कि बिकॉज देयर वाज लॉस इन फार्मिंग आई स्टिल हैड दैट थिंग इन मी कि ये दिस प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ फार्मर इज नॉट बैड, but where do I start telling people you know you should take up farming as a profession, which is a very sad part कि not even 1% of the population says कि बड़ा होके मेरा बेटा किसान बनेगा। So that was the reason and definitely मतलब deficit तो हो चुका था but मेरे actions नहीं रुक रहे थे और मैं फिर अपने आप को उस deficit में देख ही नहीं रहा था। मैं ये देख रहा था कि मेरे इस काम से क्या मैं बच्चों को इंस्पायर कर पाऊंगा। सो आई वेंट आउट ऑफ यू नो वे टू देयर स्कूल और वहाँ बोर्ड लगा करके जो सब्जी बेची थी इट हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग किड्स दैट कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है एंड इफ आई टेल देम एट दिस एज you know they will have some respect when they grow old for the people who are you know growing and working in the field and you know bringing those food to you for you to survive. करेक्ट है। So आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, वही सबसे बड़ा चीज़ है। तो वो स्कूल वेजिटेबल वो सब अलग अलग शब्द जुड़े और एक अच्छी मार्मिक और दार्शनिक कहा, हालांकि मैं उसको फिर इसलिए भी क्लियर नहीं किया बिकॉज मुझे लगा लेट पीपल
be the way they want to be Yeah, happy yeah, यार, yeah, yeah. कितने को आप justify करते रहेंगे. But हाँ, I wanted my children to, you know, to have respect for farmers. क्योंकि आप मुंबई में एक तो आप वैसे ही बच्चों को ज़मीन से दूर रखे हुए, आप हवा में लटका करके फ्लैट्स में रह रहे हैं. तो इनको पता कब चलेगा कि भाई ये धनिया है, ये गाजर में इतना उगता है. मैं कॉलेज में गया था, वहाँ पे 1000 बच्चे थे और मैंने पहली लाइन ये पूछी थी वहाँ पे जाके कि यहाँ जितने बच्चे हैं सब ग्रेजुएशन वाले थे, और कि टमाटर कितने दिन में उगता है. सो आई डिड नॉट हैव वन सिंगल हैंड कमिंग अप एंड सेइंग कि I know this. 90 दिन लगते हैं. सो तो आप मतलब प्रकृति से कितने दूर हो गए हो, और आप उन चीज़ों को ओरिजिनल मान रहे हो जो आपकी खुद की बनाई हुई है. जो प्रकृति ने बनाई है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई दैट सफरिंग इज. दैट इज़ वाई आवर प्लैनेट इज सफरिंग विद ऑल काइंड ऑफ disease and all kind of things which are happening untimely. रेन होना, बाढ़ आ जाना, फ्लैश फ्लड होना, क्लाउड बर्स्ट होना, so all everything is interrelated. So you cannot be ignorant towards, you know, nature does not need you, that's very sure. आप प्रकृति को आपकी ज़रूरत नहीं है, सही बात है. आपको प्रकृति की ज़रूरत है, लेकिन आप उसकी प्रकृति ही बिगाड़ रहे हैं. Absolutely. सो वो कहानी जब हुई थी तो ये विचार ये थे. फिर कहानी जैसी चली थी तो क्या होता है ना कि 3 तरह की कहानी आई थी उस समय. पहली कहानी तो जब ये आई थी कि राजेश कुमार ने एक तो थी सर. हाँ, 3 कहानियां मैं बताता हूँ तुमको. 3 रूप आए थे, 3 रूपांतरण थे एक ही कहानी के. पहला ये था कि राजेश ने सबैटिकल लिया हुआ है एक्टिंग से. दूसरी सोशल मीडिया जगी जिन्होंने बोला कि इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और खेती कर रहे हैं. करेक्ट. तीसरी सोशल मीडिया इन्होंने बोली कि इस एक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि खेती कर रहे हैं. फिर चौथी सोशल मीडिया ये कह रही कि खेती में इतनी बुरी हालत हो गई कि अभी वापस एक्टिंग में आए हैं. तो लोग बैठे हैं कहानी बना रहे हैं, अच्छी बात है यार. उनको कम से कम एक चरित्र तो मिल रहा है कि जिसके ऊपर एक मैंने पढ़ा था बैंकक्रप्ट भी हो गए. बैंकक्रप्ट वाली बात थी, सच थी. मतलब बैंकक्रप्ट इन टर्म्स ऑफ कि बहुत डेट चढ़ चुका था एंड देयर वाज नो इनकमिंग बिकॉज आई वाज नॉट वर्किंग एंड आउटगोइंग आपका उतना ही था. तो बैंकक्रप्सी वही होती है कि इन दोनों का तालमेल बिगड़ गया था बहुत बुरी तरह से, और बहुत डेट में था आदमी. धीरे धीरे हो रहा है यार, कुछ बचा है बस. आखिरी का मुझे लगता है कि समझ लो 10% 12% बचा हुआ होगा. बट स्टार्टिंग में सर मुंबई ने टफ टाइम दिया. स्टार्ट में? हाँ, एकदम स्टार्ट. नहीं यार, मुंबई ने कभी मुझे टफ टाइम नहीं दिया. मुंबई ने कभी नहीं टफ टाइम दिया बिकॉज मुझे काम, पता नहीं, जब मेरे पास काम नहीं होता था तो या तो उस समय क्रिकेट खेलता रहता था या खाना बनाने का बहुत शौक था. अभी भी है. तो वो मैं ना उसी में इन्वॉल्व हो जाता था. आई यूज्ड टू लव कुकिंग फॉर फ्रेंड्स. 4 लोगों को बुलाना, उनके लिए रोज अलग अलग डिश करना. सो आई वाज ऑलवेज क्रिएटिवली, एंड एट दैट टाइम व्हाई द स्ट्रगल वाज नॉट आल्सो वेरी बिकॉज मेरे अंदर ये क्लियर था उस समय कि टेलीविजन इवॉल्व हो रहा है, सो बी पार्ट ऑफ टेलीविजन. करेक्ट. फिल्मों में शायद लंबा स्टे हो जाए, लंबा स्ट्रगल हो जाए बिफोर यू गेट वर्क. सो आई थिंक दिस रूट ऑलवेज वर्क्स, that you know, but do not get corrupted in television. Do not कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिखाता बहुत कुछ है, लेकिन साथ में ना बहुत आपकी थोड़ी एक्टिंग ना डिफॉर्म भी हो जाती है इस जगह पे, क्योंकि आप हर दिन 12 घंटा कर रहे होते हो ना, तो आपको मात्रा नहीं पता चलता है कि आप किस मात्रे में अब काम करने लगे हैं, आप कितना लाउड बोलने लगे हैं, क्या आप अपने आप को सुनना छोड़ दिए हैं, आपने सामने वाले एक्टर को सुनना शुरू कर दिया. देन टेक्निकली द वे द थिंग्स आर शॉट. सो ये मुझे लगा कि ये माध्यम जो है ना टेलीविजन टू फिल्म वाला, आज मुझे पता है कि मुझे क्या क्या ड्रॉप करना है. मैं एक कहानी बताता हूँ तुम्हें, बहुत छोटी सी. विनिल मैथ्यू एक डायरेक्टर है, तो मैं मेन विल बी मैन के जो ऐड कर रहा था. सो ये बात है 2011 की. उस समय मैं फुल फ्लेजेड टेलीविजन कर रहा था. सो मुझे मिला मेन विल बी मैन का ऐड, मैं गया. फिर लेट अमित मिस्त्री वॉज देयर विथ मी इन दैट ऐड.
पम्मी आंटी जो बनते हैं, ही वाज देयर, सुमेर। तो हम लोग सब थे, वो पूरा रिहर्सल वगैरह हो गया। उसके बाद विनिल आकर के मेरे पैर के पास बैठ गया और उन्होंने बोला कि वेरी गुड, हाँ राजेश बहुत अच्छा हुआ है, रिहर्सल इज़ वेरी नाइस, लेकिन अभी जो किया है ना उसका 100% कम कर दो। So it took me 14 years to understand 100% कम क्या होता है। तो टेलीविजन में आपको पता नहीं चलता आप 100% के ऊपर हो चुके होते हो। कीप गोइंग इट, करते रहो। नहीं, आपके ना एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना वो बहुत डिस्टॉर्ट होता चला जाता है फेस पे, आपकी सहजता चली जाती है, बिकॉज आपको इंस्ट्रक्शन ही ये मिल रहा है डायरेक्टर से उधर माइक पे, शॉक और शॉक और शॉक। सो आप कैसे शॉक हो सकते हो? यू नो, यू हैव देन योर फेस चेंजेस, क्योंकि आप आंख से इतना 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 अब इतने शॉक होने लगते हो, यू नो। सो फिल्मों में वही आपको 100% कम करना है। तो ये जो ब्रेक हुआ बीच का, वो शायद वो भी एक बहुत अच्छा कारण हुआ कि जहाँ पे मैं अपने आप को एनालाइज कर पाया, मैं दर्द समझ पाया, मैं दुख समझ पाया, है ना। फार्मिंग में जो डिबेकल्स हुए या जो चीज़ें नहीं वर्क की उसका दर्द, उधार में रहने का दर्द, एज अ ह्यूमन जो एक सारी चीज़ें थी, बट उसमें एक और चीज़ हुई है, ये भी समझ में आया कि सबसे मुश्किल काम मैंने जो उठाया था ना, मतलब फार्मिंग मुश्किल नहीं है, फार्मिंग का सामान लोगों तक पहुंचाना और उनको कन्विंस करना कि ये सही चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन, बिकॉज पढ़े लिखे को पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और मैं वही पंगे में पड़ गया, मैं पढ़े लिखों को पढ़ाने लगा। वाई मिलेट्स, वाई natural, what is the difference between organic and natural? People do not want to research. Correct. It's all there. Research is what? It's all there. You have to research. Yes. Right. तो लोगों को ना, उनको ये ही नहीं समझ में आया कि हमको कहाँ पे मतलब करना है। they were not ready to give in to a person who has spent 7 years or 5 years in field, understanding it physically, being present there कि ये क्या है, rather than acting on cooked up words of organic and natural, and कि मतलब आप conditioned हो ना। Correct. तो आप जो conditioned हो गए हो, उसी conditioning पे आप react कर रहे हो। आपसे मैं बात करूंगा दूध, फिर अचानक आप शुरू हो जाएगा A2 milk I've heard is good. No, you have heard is good, or you know it is good, or you know that it is also bad. Have you questioned that? Right. So आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो कि भाई धान गेहूं नहीं करो, मत खाओ, या धान गेहूं मत उगवाओ, इस मात्रा में मत उगवाओ, बिकॉज वो प्रकृति को डैमेज कर रही है। वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। भाई एक लैंड का एक पीस पे धान उगाने के लिए या गेहूं उगाने के लिए तुमको पेड़ हटाना पड़ता है ना, तो तुम कितना पेड़ काटे हो अगर तुम धान गेहूं उगा रहे हो। सही बात है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज स्मॉल थिंग्स। तो उस फार्मिंग ने एक बेहतर एक्टर भी बनाया मुझे, क्योंकि अगर मुझे इमोट करना रहता है तो मैं अपने फार्मिंग के दिन को याद करके कभी भी रो लेता हूँ। सो आई डू नॉट हैव टू विजुअलाइज एज एन एक्टर कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा दोस्त मर गया। नहीं, अरे यार खेत में आग लग गया था उस दिन। नहीं sir, absolutely. But there was also a time before going, I want to ask you two last two questions कि there was also a time नीली वाली छतरी के बाद, हाँ, उसमें you decided कि अब मुझे कुछ काम नहीं करना, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब इंडस्ट्री के पास मेरे लिए कोई रोल है। हाँ, was that a time? हाँ, definitely I had said that, because when it got over I felt that कि saturation तो आ ही गया था ना, because वहाँ से यही रास्ते खुल रहे थे कि फिर कोई आप एक डेली सोप करते, उसमें अब आप फादर प्ले कर रहे होते या चाचा प्ले कर रहे होते। और अभी थैंकफुली जैसे इस फिल्म में वरुण है साथ में ना, वरुण बडोला, तो लोग सब कंटेम्प्रेरी हैं, टेलीविजन में साथ में थे, देश में निकला होगा चांद हम दोनों ने साथ में किया था।
तो मेरी उससे वही बात हो रही थी कि हमारे जनरेशन के जो एक्टर्स हैं ना, जैसे मानव गोहिल है, हितेन तेजवानी, रोहित रॉय, अमर उपाध्याय, स्मृति ईरानी भी वापस आ गई हैं, उर्वशी ढोलकिया, काम्या पंजाबी, you know these people by name, right? So we are still relevant in today's scenario, whether it is film, television or OTT, because हम ऐसे फेज में थे जब टेलीविजन में बहुत अच्छा काम हो रहा था जी. और वीकली शोज बन रहे थे विच वाज एज गुड एज ओटीटी, है ना? कि आप आज मंडे को एक एपिसोड देखा, फिर आपने अगले मंडे को देखा, तो आप क्वालिटी वर्क बहुत अच्छा कर रहे थे उस समय. तो हम लोग उस तरह वाले ही एक्टर हैं जो उस क्वालिटी को देख चुके थे. तो 2015-16 तक में मुझे लग रहा था कि जिस तरह से हम जा रहे हैं, या डेली सोप जिस तरह से आपको लिटरली एज अ एक्टर थका देता है एक तरह से ना. प्रायोरिटीज हर एक्टर की अलग अलग है, ऐसा नहीं है लोग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं टेलीविजन में, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं उसमें जाके बंद न जाऊं कि अभी मैं इसका बाप हूं. और डेली सोप का एक और खासियत बताता हूं तुमको, ये किसी को नहीं मालूम है. जब आपकी कास्टिंग हो रही होती है ना, तो एक्टर इस बात का अननोइंगली ध्यान रखता है कि वो लड़की का बाप ना बने. क्यों? क्योंकि वो जिस दिन विदा होगी उस दिन आपका कैरेक्टर खत्म हो जाएगा. So you always want to be on the boys side, है ना? क्योंकि यहाँ तो जब तक है तो लड़की की माँ हूँ, लड़की का बाप हूँ. वो फिर 3-4 महीने में शादी हुई और आप बस आपने फूल जिस दिन फेंका, बस समझ लीजिए कि वो माला जो है आपके फोटो पे चढ़ रहा है. कि अब आप टाटा, आपका काम खत्म डेली सोप में. एब्सोल्युटली राइट सर, सही बोला है ना? बट सर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा नहीं हमको फीस को लेके, या कभी? अच्छा वैसा वाला कॉम्प्रोमाइज. सॉरी. नहीं कई बार ना काम कर खांस ले. कई बार काम अगर अच्छा होता है ना, तो लोअरिंग डाउन योर फीस इज नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज दैट विल गेट यू मोर वर्क. डूइंग इट एट अ सर्टेन लेस प्राइस भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर है ना, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, आप कितने, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए. वो स्ट्रगल चल रहा है, वो हमेशा ही चलता रहेगा इस इंडस्ट्री में. मतलब कोई हमारा पैरामीटर नहीं है कि यहाँ तक आपने काम किया तो इतना पैसा, यहाँ तक किया तो इतना पैसा. तो कॉम्प्रोमाइज काम के लिए बस यही किया है कि हाँ डेफिनेटली 1-2 काम बिल्कुल फ्री में भी किए हैं. क्या बात कर? या बिल्कुल फ्री. इन योर अर्ली डेज या अभी? आई वुड से अभी. ऐसे? हाँ, दो काम मैंने मतलब बिल्कुल ही जाने दिया वाले हिसाब में हूँ. बट बिकॉज आई नो कि these roles will Hit get you. me to a better place. That is fine. Because of friendship, or it was just No, because obviously because your of the career friendship graph? also, हाँ. because you also understand the situation. Yeah. You understand not only, that is what I'm saying, being Yeah. human is the best thing you can do it. Because आप जब बैठे होते हैं ना अपने प्रोड्यूसर के साथ या मेकर के साथ, you also understand कि इनकी अगर सिचुएशन समझ में आ जाए ना, कि यार ये भी बनाना चाह रहा है, ये भी अपने आप को भी बना रहा है, ये सिर्फ फिल्म नहीं बना रहा है, ये सिर्फ वेब शो नहीं बना रहा है, ये अपने आप को भी बना रहा है. अगर ये बनेगा तो ये और मेरे साथ काम करेगा जी, है ना. अगर यही नहीं बनेगा, अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होगा, तो एक्टर क्या है, फिर वही है कि चावल दाल आपको मिलेगा, आप घर घर जाके परफॉर्म कीजिए. पुराने जमाने में तो यही होता था ना, कि आप परफॉर्म करते थे तो पैसा थोड़ी मिलता था, चावल दाल मिलता था. तो वो कॉम्प्रोमाइज अच्छे काम के लिए किया है, लेटली किया है, बट आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक कि आवश्यकता पड़ेगी.
But thank you so much, sir, talking to you. me. You know, it's always lovely talking to Arey. you and inviting us and having a, you know, good conversation. What's much Yeah, needed after Sayyara success. Oh, I know, I And know. सर ये आपकी ब्लॉकबस्टर्स का जो रेल है चालू हुआ है अभी और चलता ही रहे, मैं आशा करती हूँ. बस thank you. you That's- keep giving us such good works. Thank you so dear. much for talking to me, Thank you sir. so much. Thank Thank you. you. And नए पुराने सभी लोगों को ढेर सारा प्रणाम और especially thanks to all the netizens and youngsters that you are loving the movie, and I hope that you are taking a positive end from the movie for yourself, and you will work on yourself. See, this is the very crucial time for all the youngsters. Maximum number of suicides are happening, you know, for all the kids who are in their teens or till 25, 26. So do not, you know, do not get trapped into such kind of emotion कि इतना drastic step लेने की आवश्यकता पड़े. Keep yourself entertained, and we also take responsibility as an industry, as a film industry, that we keep on entertaining you and giving you something which will always keep you on and keep you going. So thank you so much for watching Sayyara.